بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ضیاء الحق ابراری اور دروس القرآن چینل کے اندر آپ سب کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں ہم لوگ حروف مدہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں اور کیسے اس کا استعمال ہوتا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ہم نے پچھلی بہت ساری کلاسز میں ہم لوگوں نے بہت کچھ پڑھا ہے، جیسے کہ شروع سے ہم نے پڑھا کہ حروف تہجی کیا ہوتے ہیں، پھر مرکبات کیا ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ حرکات کیا ہوتے ہیں۔ حرکات میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ حرکات کو جلدی پڑھیں گے اور اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ سکون یعنی جزم کا بیان پڑھا کہ جزم کو کس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، یعنی جزم کے اندر ہم لوگوں پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو اگر ان تمام دروس کو آپ لوگوں نے مس کر دیا ہے، نہیں دیکھا ہے، تو میری گزارش ہے کہ یہ درس کے بعد ان دروس کو بھی دیکھیں، جو آپ کو پلے لسٹ مل جائے گا، ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، تو وہاں سے آپ لوگ واچ کر سکتے ہیں اور ان تمام دروس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا جو درس ہے وہ درس نمبر 7 ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ درس نمبر 7 کس چیز کے بارے میں ہے؟ حروف مدہ کا بیان۔ اب حروف مدہ کیا ہوتا ہے، کیسے اس کو پڑھتے ہیں، تو آگے سلائیڈز میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو حروف مدہ کے اندر بھی ہم لوگ چند پوائنٹس کو ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ حروف مدہ کو کس طرح سے پڑھا جائے۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مدہ کے معنی ہے کھینچنا، یعنی حرف کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو آپ اس حرف سے ہی یعنی لفظ مدہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدہ کہتے ہیں کہ کھینچنے کو، مدہ یا مدو مدن، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھینچنا۔ اب یہاں پر تجوید کے اندر ہم لوگ جب بھی مدہ بولیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ حرف کے اندر پڑھتے وقت اس حرف کو ہم لوگ کھینچ کر پڑھیں گے، جس طرح سے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا حرکات کے بارے میں کہ حرکات کے اندر ہم لوگ جلدی پڑھتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے مدہ اس کے برخلاف ہے، اس کے اندر ہم لوگ اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو، ان کو حروف علت بھی کہتے ہیں۔ وہ 3 حروف ہیں جن کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ حروف کسی بھی دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آئے تو اس حرف کو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا۔ اور ان تینوں حرف کو یعنی الف، یا، واو، ان تینوں کو حروف علت بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے انگلش میں الفابیٹس میں سے 2 قسم کے الفابیٹس ہوتے ہیں، ایک واولس ہوتا ہے اور ایک کانسوننٹ ہوتا ہے۔ تو جو واولس ہیں 5 لیٹرز جو انگریزی میں استعمال ہوتے ہیں کسی بھی ورڈ کے اندر، وہ 5 حروف میں سے کوئی اگر حرف آئے تو اس کا جو تلفظ ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی جو ہے عربی کے اندر اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ 3 حروف جو ہیں وہ واولس ہیں۔ کون کون سے؟ الف، یا، واو۔ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو کیسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حروف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے یا الف زبر یا، با یا زیر بی، با واو پیش بو، یا بو بی۔ اس طرح سے جو ہے حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو تفصیلات ہیں حروف مدہ کے بارے میں وہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب بات کرتے ہیں ہم لوگ الف مدہ کی۔ جیسا کہ ہم نے بتایا پچھلے سلائیڈز پہ، ہم نے بتایا کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ تو اسی ترتیب سے ہم لوگ چلیں گے، اور سب سے پہلا جو ہمارے پاس مدہ ہے وہ ہے الف مدہ۔ اس میں بھی 2 پوائنٹس ہیں، آپ ان کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ
होगा। इसके अंदर थोड़ा सा आप लोगों को समझने वाली बात है कि अलिफ मद्दा एक्चुअल में किसे कहा जाता है। जो अलिफ मद्दा हम बोलते आ रहे हैं, तो अलिफ मद्दा बनेगा कैसे? तो अलिफ मद्दा के लिए अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर बा, अलिफ जबर बा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलिफ है, ठीक है, और उससे पहले जबर है, तो ये अलिफ मद्दा कहलाता है। अब एक बात यहाँ पर गौर करें, अलिफ जो होता है, अब हमने पिछली दरस में बहुत सारे दुरुस में कहा कि अलिफ खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। तो यहाँ पर भी आप गौर करें कि इसके ऊपर कुछ चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ये खाली है, लिहाजा इसको अलिफ कहा जाएगा, ये हमजा नहीं है। तो ऐसा बगैर कुछ हरकत या सुकून के जो हो वो अलिफ कहलाता है। तो ये अलिफ है और उस अलिफ से पहले ज़बर है, तो ये अलिफ मद्दा कहलाएगा। दूसरी बात ये है कि अलिफ जब भी होता है वो मद्दा ही होता है, ठीक है। अलिफ को जहाँ भी पढ़ा जाएगा वो तौर मद्दा ही पढ़ा जाएगा। अगर उसके ऊपर कोई हरकत आ जाता है तो वो हमजा कहलाता है, लिहाजा जब भी अलिफ होगा तो वो खाली होगा। और इस वजह से पता यह चला कि अलिफ जो है वो हमेशा क्या हो सकता है, मद्दा ही हो सकता है। उसके बाद जो है दूसरा जो पॉइंट इसके अंदर है वो ये है कि अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे बा अलिफ जबर बा। अब आप पिछले स्लाइड्स में भी देखें कि जितने भी हुरूफ मद्दा हैं, अलिफ हो, अलिफ मद्दा हो, या मद्दा हो, वाव मद्दा हो, जो भी हो, उसको क्या करना है, हमें खींच कर पढ़ना है। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि अलिफ मद्दा जो है उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि अलिफ मद्दा को क्या करेंगे, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो एक अलिफ की मकदार क्या है, ठीक है। खींचने के लिए तो बहुत लंबा भी खींच सकते हैं और थोड़ा भी खींच सकते हैं। तो इसकी मकदार ये है, एक अलिफ के बराबर जो मकदार है उसको आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं कि बा अलिफ ज़बर बा बा। अगर इसको इस तरह से हाथ से भी काउंट कर सकते हैं आप, जैसे कि बा अलिफ ज़बर बा। अगर ज़्यादा खींचेंगे तो जितने अलिफ खींचेंगे उतने अंगली हम लोग निकालेंगे, बा, तो ये 5 अलिफ हो गया, ठीक है। बा एक अलिफ हुआ। तो ये मकदार मैं समझता हूँ कि इस तरह से जो है आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं ये तरीक़ा आप लोगों को बताया। हमने समझ लिया कि अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और अलिफ से पहले ज़बर होता है, इसलिए वो अलिफ मद्दा कहलाता है। तो अब इसकी हम लोग मुस्तकिल अलिफ से लेकर या तक पूरे हुरूफ तहज्जी के साथ मिला करके हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, जा हा खो दा ज़ा रो ज़ा सा शा सो वो तो ज़ो आ गो फा को का ला मा ना वा हा आ या। आप लोगों ने देखा कि बा से लेकर या तक हम लोगों ने पूरे हुरूफ तहज्जी को इसके अलिफ के साथ मिला करके हमने प्रैक्टिस किया है। तो आप लोग भी इसको जो है एक बार जो है हिज्जे करके आप लोग प्रैक्टिस करें, यानी बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा। 1 से 3 बार इसको हिज्जे के साथ प्रैक्टिस करें और कम से कम 20 मरतबा इसको जो है रवांगी के साथ इसको पढ़ें, यानी बा खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बा नहीं पढ़ेंगे, बा ता सा नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? इसलिए कि ये जो है हरकत नहीं है यहाँ पे क्या हो गया है, हुरूफ मद्दा हो गया है। तो हुरूफ मद्दा का हुक्म क्या है आप लोग जानते हैं कि एक अलिफ के बराबर हुरूफ मद्दा को, यानी यहाँ पर अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा कहलाता है, और इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे।
تو उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक की जो बहस है, यहाँ तक का जो ये दर्स है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और अलिफ मद्दा को भी अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं और आगे जो है हमारे पास मश्क है, यानी हमने जो है अब अलिफ से लेकर या तक तो पूरी रवानगी के साथ, हिज्जे के साथ हमने पढ़ लिया है, एक हर एक हर्फ के साथ मिला करके। अब हम कलिमात के अंदर इसको अप्लाई करेंगे और वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ला, कॉफ अलिफ ज़बर ओ, तो इसको जो है कॉफ के बाद क्या है, अलिफ है, और अलिफ से पहले हरकत है, ज़बर है, तो इसको अलिफ मद्दा कहेंगे। तो ये अलिफ मद्दा को क्या करेंगे, इसका हुक्म क्या है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और लाम के ऊपर फतह यानी ज़बर है, तो आप जानते हैं कि ज़बर को किस तरह से पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, उसको खींचेंगे नहीं। कैसे पढ़ेंगे, ला ओ ला। आगे चलते हैं और उसके बाद है ता बा। तो यहाँ पर गौर करें, ता अलिफ ज़बर ता, ये अलिफ मद्दा है, ठीक है, ये क्या है, अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा है, तो इसको क्या करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। ता बा ज़बर बा, क्योंकि वो हरकत है, बा के ऊपर क्या है, वो हरकत है, मुतहर्रिक है, वो मद्दा नहीं है, इसलिए उसको जल्दी पढ़ेंगे, ता बा। और आगे है हा अलिफ ज़बर हा, ठीक है, तो हुरूफ मद्दा है, अलिफ मद्दा है, तो इसको खींचेंगे, हा सा बा, हा सा बा। तो इस तरह से पूरे मिसालों को पढ़ना है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से पढ़ना है। यहाँ पर है इंसानु, यहाँ हमजा नून जेर इन, सीन अलिफ ज़बर सा, इंसा, नून पेश नु, इंसानु। तो यहाँ पर हमने मिलाकर पढ़ा, ठीक है, अलिफ हमजा को हमने नून से मिलाकर पढ़ा, उसके बाद सीन के बाद अलिफ है, तो सीन को अलिफ से मिलाकर खींच कर पढ़ेंगे, इसलिए कि वो हुरूफ मद्दा वहाँ पर अलिफ मद्दा है, और आखिर में नून मुतहर्रिक है, तो इसको जल्दी पढ़ेंगे। उसके बाद है अमाता, ठीक है, यहाँ पर भी ये हमजा जो है वो मुतहर्रिक है, उसके बाद अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। उसके बाद ता क्या है, मुतहर्रिक है, इसको भी खींच कर नहीं बल्कि जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है, अमाता। उसके बाद है तो आमी, उसके बाद है सबबना, यहाँ पर नून अलिफ ज़बर ना, आखिर में हुरूफ मद्दा में से यहाँ पर अलिफ मद्दा है, तो इसको खींच कर पढ़ेंगे, सबबना। उसके बाद है कवाकिबा, यहाँ पर अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है, इसलिए ये अलिफ मद्दा कहलाता है, कवाकिबा। मरासिला, रा अलिफ ज़बर रा, तो रा अलिफ ज़बर रा को क्या करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे, मरासिलु। आगे है रवाकिदा, वाव अलिफ ज़बर वा, हुरूफ मद्दा को खींच कर पढ़ा जाता है, लिहाजा यहाँ पर क्या है, अलिफ मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे, रवाकिदा। उम्मीद है कि आप लोग आज का जो दर्स है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा और बहुत ही पसंद आया होगा, और हुरूफ मद्दा के बारे में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा से समझा होगा कि हुरूफ मद्दा को किस तरह से पढ़ा जाता है और इसको कैसे खींचा जाता है, कितने अलिफ खींचा जाता है। अलिफ मद्दा के बारे में भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें मुस्तकिल, और जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को उतना फ़ायदा होगा। अगर आज का दर्स आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह अपने फ्रेंड फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो कुरान करीम सीखना चाहते हैं, कुरान करीम से जुड़ना चाहते हैं, वो उससे फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं अगले दर्स में और अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।